Good morning, students. So today we are reading Agame Rainforest. In previous, we have read about this chapter. Okay, so we are there was a king cobra sanctuary in this Agame Rainforest, and Agame Rainforest that was situated in the Karnataka. Okay, ARRS Agame Rainforest Research Station. So we are moving to this lesson and are going to read about all these things. And Rahul, he had watched one documentary of Rom Whitaker's that was on the king cobra. So he caught this first king cobra in Agambe 1971. Okay, and for this place is a best place for establishing a king cobra. This is a sanctuary where it was there where number of snakes, cobras, these are there in this Agame rainforest. Okay, and that place was in the 4 acre. Okay, so and June 2010 that were writer he headed it. Okay, so he was moving to this rainforest and he was very excited. He was driving the car and he was not tired, and he we have learned all lot of things in this chapter, and describing a cobra, and how can we go and locate there, because there is a chip inside their body, and from that we can easily come to know that animal where it is in that Agame rainforest. Okay, so we have read all these things. Now continue with this chapter. I wore leech socks, basically bags of thick material. So he was telling कि I was जो है this leech is one insect that एक कीड़ा होता है. It used to suck the blood from किसी को भी, एनिमल को या ह्यूमन को, किसी को भी अगर वो जो है उसके बॉडी पे चिपक जाता है तो इट यूज टू सक द ब्लड, वो खून चूसता है और वो ना चिपका रहता है. बहुत ही ईजिली हम उसको रिमूव नहीं कर सकते बाय पुटिंग द सॉल्ट या फिर किसी और चीज़ से उसे निकाला जाता है, तब वो ईजिली निकलता है, अदरवाइज़ वो चिपका रहेगा. इसीलिए राइटर ही सेइंग कि आई वोर जो है लीच सॉक्स, उसने पहले जो है एक लीच सॉक्स पहनी, उसके बाद ही पुट द शूज़ ओवर इट. Okay, the leech socks were Prashant's idea, and this was the idea of the Prashant. It's not me, and I must say I was totally skeptical about their effectiveness at the start. Skeptical means full of doubt. Why should I wear leech socks? All these things. He was not knowing about the leech, but he come to know about all these things because in the Agame rainforest, as you know, there is a lot of rains there, and जहाँ पर बारिश होती है, and there will be what there is leech, बहुत सारी leeches होती हैं. But I figured I did tried them anyway. So he was tried for this. Okay. Now my guide Raghu. Now come to know about what my guide. Guide is what? Guide is beta what कि जिसको सारे उस एरिया की ही having the all the informations regarding that place, ARRS. सो वहाँ का वो गाइड है और उसको सारे जानवरों के बारे में, यहाँ प्लेसेस हैं, वाटरफॉल हैं, और भी जो भी है वहाँ पर रहने की सुविधा है. एंड वी आल्सो कम टू नो देयर इज़ कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पर सोलर सिस्टम है. तो ये सब चीज़ें उसको मालूम है कि किस तरह से वहाँ पर इंजॉय करना है, कहाँ पर क्या जानवर मिलेगा. तो रघु वो है पूरी डिटेल उस जो है प्लेस की बताएगा. कोई भी गाइड है जो उसके प्लेस जहाँ का भी होता है वो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन रखता है. सो उसका गाइड जो है रघु है और वो बेयर फुट है. एंड राइटर जो है उसने देखो कि लीच सॉक्स भी पहनी हुई है, फिर उस पर शूज़ भी पहने हुए हैं, लेकिन जो गाइड रघु है वो जो है नंगे पैर चल रहा है. एंड इवन दो ही वॉज हाफ माई साइज ही वॉक फास्ट. और वो जो है जो राइटर है राहुल, वो तो काफ़ी हाइटेड है, लेकिन वो उसके हाफ है, बहुत छोटा है उससे.
I, on the other hand, after a heavy breakfast, could only hope that I would not get a crump matching his speed. Crump means what? He was saying crump means what बेटा? क्रम्प मीन्स होता है कि मसल्स में पेन होना, क्योंकि उसने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया है। और जब हम खाना खा लेते हैं ना तो आपको मालूम है हमें चलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, हम चल नहीं पाते। और वहाँ पर आप देख रहे हो लुकिंग एट द रघु दैट गाइड ही वॉज मूविंग वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी तेज नहीं चल सकता। ओके, ऑफकोर्स माई ईगो वुड नॉट अलाउ मी टू आस्क रघु टू वॉक स्लोअर। और ये मेरा ईगो हर्ट होगा कि मैं रघु से बोलूँ कि आप स्लो चलो, ठीक है ना, क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा। लेकिन इवन देन ही वॉज नॉट रेडी टू आस्क कि आप जो है रघु थोड़ी स्लो चलो। सो आई रिसॉर्टेड टू मूव डिसिप्टिव tactics is what action used to make a fool someone, यानी भ्रम जो है रणनीति करना, उसको मतलब ऐसे एक्शन करना कि उसे दूसरे को ना जो मूर्ख बनाना, ठीक है ना। तो उसने सहारा लिया कि है ना मैं इसको ना मतलब ऐसे तो नहीं सीधा कह सकता कि भी स्लो चलो, तो उसको ना धार्मिक जो है वैसे फूल बनाने की वो कोशिश कर रहा है, डिसेप्टिव टैक्टिक्स। सो even every once in a while I would grunt means what? Grunt, घूरना। Raghu and I did not have a common language, means common language like we having Hindi common language, we can easily communicate with each other। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकती हूँ, पर वहाँ पर जो है रघु की और उसकी जो है राइटर की जो है एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे को समझना। तो कॉमन लैंग्वेज होगी तो हम अपने जो है व्यूज़ हैं, अपने जो विचार हैं आपको बोल सकते हैं, इसलिए आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे भी हम बोल के तो कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, रघु और जो राइटर है उनकी कॉमन लैंग्वेज ना होने के कारण वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब इशारों में तो बात हो जाती है, अदरवाइज एक जैसे हम फुली एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, ऐसे नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज दे डू नॉट हैव ए कॉमन लैंग्वेज। And pretending that I needed to stop to tie my shoelace or click a photograph of giant squirrel already too far away, or a simply pause and take in the forest, which was more me trying to breathe deeply. So I did not give up game away by gasping for air. सो आई डिड नॉट गिव द गेम। अब वो जो है नाउ ही वॉज टेलिंग कि राइटर कह रहा है कि मैं अब प्रिटेंड मीन्स बहाना मार रहे हैं कि किस लिए? स्टॉप होने के लिए, बिकॉज ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। तो इसलिए कभी वो बहाना मारता है कि मेरे शू लेसेस खुले हुए हैं, उनको टाई करने लग जाता है, और कभी बीच में है ना फोटोग्राफी लेने लग जाता है किसी बहुत बड़ी स्क्वायरल है गिलहरी की, और जो है और ऐसे ही बीच में खड़ा हो जाता है, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है फॉरेस्ट के अंदर। तो विच वॉज मोर मी ट्राइंग टू ब्रीथ डीपली, तो मैं ना थोड़ी सांस अपनी आराम से ले सकता हूँ। सो आई डिड नॉट गिव द गेम अवे बाय गैस्पिंग फॉर एयर। और वो हाफते हाफते ये सारी चीज़ें कर रहा है। एंड ही अगेन वो अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, पर प्रिटेंड कर रहा है, कभी कुछ का बहाने मार रहा है, शू लेसेस है, फोटोग्राफिंग ले रहा है, इस तरह से वो थोड़ी सा स्टॉप हो रहा है, ठीक है। द फॉरेस्ट वी वॉक थ्रू वॉज डेंस एंड डार्क। जिस फॉरेस्ट से वो मूव कर रहे थे दैट वॉज अ वेरी डेंस, डेंस इन द सेंस बहुत ही घना है और बहुत ही डार्क है। डेंस और डार्क है मीन्स वहाँ देर आर लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत है, नंबर ऑफ ट्रीज आर देयर। और वो पास पास होने की वजह से व्हाट हैपन कि वो बहुत ही घने हो चुके हैं, और जब घने हैं तो वहाँ पर अंधकार है, ठीक है। देयर वॉज अ थिक मिस्ट इन द सम एरियाज एंड वाटर ड्रिप्ड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ferns which wrapped the biggest tree. Now this forest rainforest that was very dense and it was very dark also. So वहाँ पर कहीं कहीं पर जो है बहुत मिस्ट इज़ वॉट, जो है धुंध आ जाती है कुछ एरिया में, और वहाँ पर है ना वाटर ड्रिप्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द फर्न्स, पेड़ पौधों से जो है पानी जो है ड्रिप कर रहा है, ड्रिप मीन से टपक रहा है। एंड जो है कि जो ट्रैप द बिगेस्ट ट्री मीन्स जो है और जो है लिपटी हुई हैं वहाँ पर पेड़ पौधे आपस में जो हैं इतने घने हैं वो। फॉर एवरी जायंट ट्री विद अ ह्यूज ब्यूट्रसेस देयर वर 100 ऑफ saplings all tall but extremely
स्किनी, स्किनी मीन्स बेटा क्या होता है, बैक पतला, बहुत ही ज़्यादा क्या है वो पतला है। तो वहाँ पर जो ये बड़े बड़े जो पेड़ हैं और जो बटरस होता है बेटा, पिक पार्ट्स दैट स्टिक आउट, और जो है उसको जो पेड़ है उससे बाहर निकलना, पेड़ के ऊपर पेड़ जिस तरह से उग जाते हैं, तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे ऐसे हैं। देयर वर 100 ऑफ जो है छोटे छोटे सैपलिंग होती हैं बेटा, छोटे छोटे पौधे निकलना, छोटे सैपलिंग छोटे पौधे होते हैं ना। एंड ऑल द टॉल वर एक्सट्रीमली स्किनी, और जो है टॉल हैं, लंबे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा क्या है, पतले हैं। आई थॉट दिस माइट बी ड्यू टू द सेलेक्टिव चॉपिंग ऑफ द जाइंट, और ये इसीलिए है कि हम इसको चॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं बार, तो इसीलिए होगा। देन आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, हाउएवर दैट रीज़न फॉर द spacing out the giant was because each one of them formed a huge canopy overhead. Canopy is what beta? Branches and leaves that spread out at the top, और वो कैनोपी है ना, इस तरह से आपस में उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे की दूसरे पेड़ की तीसरे ऐसे पेड़ों की आपस में टहनियाँ जो हैं, जैसे ये पेड़ है और जो है आप ये ऐसे से यहाँ पर भी पेड़ है, तो यहाँ पर भी है, तो ये आपस में इनकी जो ब्रांचेस इस तरह से हैंग हो रहा है, और इस स्पेस को हम जो है कैनोपी कहते हैं, जहाँ पर आपस में ये जो सारी टिप्स हैं ऊपर से मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में क्या है, उलझी हुई हैं, ठीक है। सो ओवरहेड obviously clear, obvious means what, clear, they had to be far apart from each other, भाई एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, ओके। एंड द स्ट्रगलिंग skinny saplings were not alike gangly. Gangle means what, tall and thin, they are means they are tall and thin. Adolescent means किशोरावस्था में, तो ये इस तरह से जो आपस में जो है स्ट्रगल कर रही हैं, पतली पतली सैपलिंग्स आपस में क्या है, जो है जो कि टॉल हैं और ये थिन है, ओके। All of them hoping they were in the spot that would allow them to grow into the giant themselves one day. और उनको जो है ये होप है, आशा है कि एक दिन वो ना अपने आप ही अलग से क्या होंगी, अलग हो जाएंगे, अलग यहाँ बहुत विशाल, दिस इज़ अ वेरी बिग ह्यूज, जाइंट मीन्स वेरी ह्यूज, और एक दिन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे ये छोटे छोटे जो पेड़ पौधे सैपलिंग्स हैं, छोटे छोटे जो हैं, ठीक है ना। द trick is what, that is a journey. Trick means journey, journey means yatra. The trick ended at the summit of waterfall overlooking an extensive valley. Now this ये जो यात्रा है, जो कि एक सुमित मीन्स होती है टॉप, ऊंचाई, चोटी, ठीक है, of the waterfall overlooking an extensive is what, covering a large area, और वो large area cover कर रहा है, filled with the trees, जो कि पेड़ों से भरा हुआ है। It was a most स्पेक्टुकुलर प्लेस, और ये जो स्पेक्टुलर मीन्स ये क्या है, बहुत ही देखने के लिए है, दर्शनीय प्लेस है। वन मोमेंट यू कुड सी नथिंग, एक क्षण तो आप देखोगे कुछ भी नहीं है, बट ट्रीज फॉर माइल्स अराउंड, और दूर दूर तक पेड़ पौधे ही आपको नजर आएंगे। एंड ओनली 5 seconds लेटर क्लाउड्स वुड बी ब्लॉक आउट द एंटायर वे, और थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे कि आपको दूर दूर तक तो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ी देर में वो ब्लॉक्ड आउट हो जाएंगे। ब्लॉक्ड आउट हो मीन्स आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि क्या है आगे। अभी तो आपको नज़र आ रहा था कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और इस तरह से, लेकिन थोड़ी देर में आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, मिस्ट, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है अचानक से, और तो इसलिए आप वहाँ नहीं देख सकते। ओके, टेल मी व्हाई डिड द नरेटर हैव टू कम्युनिकेट विद रघु इन द साइन लैंग्वेज, कि जो है साइन लैंग्वेज में उससे क्यों बात करनी पड़ रही थी। एज यू नो दे आर नॉट हैविंग द कॉमन लैंग्वेज, उनकी जो है कॉमन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। उनकी क्या लैंग्वेज क्या है, कॉमन नहीं है। जैसे वी आर हैविंग द हिंदी हमारी कॉमन है, हम आपस में जो है वट एवर वी हैविंग द आइडियाज़ व्यूज़ वी आर शेयरिंग ईच अदर, लेकिन उसके पास क्या है, कम्युनिकेशन करने के लिए उनके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है। दैट्स वाई इन दे रघु जो है कम्युनिकेट विद हिम इन द साइन लैंग्वेज, ओके।
तो वो साइन लैंग्वेज में उससे बात कर रहा है. आई कॉन्वे टू रघु इन साइन लैंग्वेज दैट आई लव द प्लेस. नाउ ही कांट डिस्क्राइब हिज वर्ड्स दैट ही लव दिस प्लेस, कि उसे इस जगह से, रेन फॉरेस्ट अगेमे से बहुत प्यार है. तो वो अपनी मैसेज कैसे साइन अपना शो कर रहे हैं, बाय साइन लैंग्वेज, इशारों से वो शो कर रहा है. ठीक है ना, इशारों से बता रहा है कि आई लव दिस प्लेस, मुझे इस जगह से बहुत प्यार है. एंड ही मस्ट हैव गॉट द मैसेज, और उसको ये मैसेज मिल गया. सिंस ही रिप्लाइड विद अ विजिबल शेक ऑफ हिज हेड, और जी हाँ, उसे समझ में आ गया कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आई लव दिस प्लेस, और उसने अपने जो सर को क्या है, शेक किया, हिलाया. इट मीन्स कि उसको समझ में आ गई है बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. ए बुक बिग टूथी स्माइल एंड ऑडिबल ग्रांट. और टूथी स्माइल्स मीन क्या होता है कि पूरी खुल के जब हम स्माइल करते हैं ना, तो बीच में जब, तो उसे हम कहते हैं पूरे दांत हम शो करके और वो स्माइल करना. तो उसने शेक अपना सर हिलाया, उसके बाद बहुत बड़ी स्माइल दी, और जो है, और जो उस तरह से ऑडिबल ग्रांट जो है वो उसने कहा ऐसे करके. आई लेफ्ट अगेमे अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट मॉर्निंग ही लेफ्ट अगेमे अर्ली, मॉर्निंग में उसने जो है उस प्लेस को लेफ्ट कर दिया. आफ्टर 3 नाइट्स, वो वहाँ पर 3 रातें रुका था. ठीक है, 3 नाइट्स जो है राहुल एल्वेर्स जो है वहाँ पर रुका था अगेमे में. और जो है विर्क टेल्स मी, और विर्क ने मुझे बताया दैट अगेमे इज़ जस्ट वन ऑफ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट इन कर्नाटका. ही वॉज टेलिंग दैट दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. और अगेमे कर्नाटका में कुछ देखने की जगह है, तो वो क्या है, अगेमे. दिस प्लेस इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल एंड आई बिलीव हिम, और मेरा भी उस पर पूरा विश्वास है, बिकॉज ही वॉज लविंग वेरी मच दिस प्लेस. एंड आई एम जो है रैगिंग टू गो ड्राइविंग बैक देयर अगेन. अब वो क्या है, अब वो बता रहा है कि वो भी इस जो है प्लेस को, आई एम रेयरिंग मीन्स बहुत बेताब है कि वो फिर से यहाँ पर आए. तो ही वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस अगेमे रेन फॉरेस्ट, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड ही वॉन्ट्स टू बी कम बैक अगेन टू विजिट दिस प्लेस. So in this way we have ended this chapter. So we have learned about this sanctuary, where you know what is a sanctuary here. Sanctuary, what do you mean by sanctuary? Sanctuary क्या होती है बेटा, जैसे हमारे पास जो जानवर होते हैं ना, इसमें जो है किंग कोबरा सेंचुरी हम जो है इस लेसन में पढ़ रहे हैं. तो इसमें जो एनिमल्स हैं ना बेटा, वो फ्रीली छोड़ दिए जाते हैं. उनको कोई मतलब ऐसे नहीं है चेन में, जैसे जू में तो क्या होता है कि हम उनको क्या करते हैं कि जो बहुत ही जो डेंजरस एनिमल है उनको एक छोटे से पिंजरे में भी यूज़ टू कीप दैम इन ऑल दिस. बट यहाँ पर ये जो किंग कोबरा सेंचुरी जो इस्टेब्लिश की गई है कर्नाटका में, जो है ARRS में, अगेमे रेनफॉल रिसर्च स्टेशन में, तो वहाँ पर इनके ऊपर जो है ये फ्रीली छोड़े गए हुए होते हैं. और जो है ये जो अगेमे रेन फॉरेस्ट है, ये स्पेशल रिसर्च स्टेशन है. यहाँ रिसर्च की जाती है अबाउट द एनिमल्स लाइक, एंड इट इज़ स्पेशली फॉर ए किंग कोबरा दैट इज़. So we have read in this chapter about all these cobras and all different types of animals here, waterfall also, okay, types of frogs we have read in this chapter. So we have finished Agame rainforest. Thank you.